And for all of us, our next speaker is respected Utsav Bhai. So I think Utsav Bhai, very, very welcome. Namaste. And Utsav Bhai is the Deputy Director in the news section, Darshan. So he works with DD News and Ministry of Information and It is absolutely a post by Ministry of Information and Broadcasting. Now, this was the formal welcome what I'm doing to you. But at the same time, trust me, children, the best introduction I would like to give would be very informal. Okay, very informal. That before, I think 2-3 months, yes, in February, there are 2 days. One is Girls and Women in Science and Technology, 11th of February, and National Science Day, that is 28th of February, correct? So on those 2 days, usually, I feel super excited because as a women scientist, I love to talk to the audience, especially when I came to Shama School. You all know that, how vibrant it could be as an environment if both the sides, everyone is talking, correct? So like that, Utsav Bhai had called me in DD. And to my greatest surprise, I met an anchor who knew so much about what he was asking. So usually I had been to a place for an interview where they have a fixed amount of question कि जो उनको दिए जाते हैं बेटा और वो पूछते हैं, एंड कोई ऐसे एंकर बहुत कम होते हैं जो एक्सटेम्पोर आपको आपकी बात जान के आपको पूछ सके, बिकॉज उनको पूछने के लिए सपोज मुझे वो आंसर नहीं आया तो उनको आना चाहिए, है ना? सो the whole idea is that Utsav Bhai, that day itself I found that he's very learned, very the person who is actually hardworking, okay, and explores the role lot out of his own curiosity. That is number one. Then eventually I also found that he has his Facebook page and we got connected on social media, and he writes also so well. And in one of his articles, he had actually put up even the citation, okay, that this is from where I have taken it. So it is so authentic that, as I told you, there are two things that basically there are two things. That one is that there should not be any plagiarism, copy नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं से कुछ उठाया है या अगर कहीं से कोई information लिया है, so make it very authentic. So welcome Utsav Bhai, welcome, and now without wasting a single minute, over to you please. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेगा मैडम, तेजल मैम, प्रिंसिपल शमा स्कूल। बहुत ही हम लोग बहुत जगह पे मैं बात करने के लिए जाता हूँ, बहुत अलग अलग विषयों पे बात करता हूँ, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि इस तरह का कोई टॉपिक, कोई विषय एक दिया गया है। इसका उन्वान ही इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है कि इस विषय पे बात की जाए, और खास तौर पे आप जैसे बच्चों से कि जो मैं मानता हूं कि जो हम लोग बड़े होते हैं उसकी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो चुकी होती है, आप लोगों की बुद्धि हमसे थोड़ी तेज होती है और आप बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं। तो मैं केवल कुछ यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ, कुछ बात करने के लिए आया हूँ, बाकी सब तो बहुत कुछ आप जानते ही है। मुझे सबसे पहले तो आपके स्कूल का नाम बड़ा अच्छा लगा, शमा स्कूल। क्षमा वो होती है जो अंधेरे के सामने लड़ती है, क्षमा वो होती है जो पूरी रात अकेले होने के बावजूद भी उस घने अंधेरे के सामने झुकती नहीं है, वो पूरी रात जलती है और रोशनी देती रहती है, और कोई दूर से अगर इस क्षमा को देखता है तो उसको पता है कि कहीं ना कहीं ये अंधेरे में एक चिराग जल रहा है, उसकी क्षमा जल रही है। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें आशा नहीं खोना है। तो अगर जब आप शमा स्कूल जैसे किसी ऐसे नाम वाली स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा है कि इसका एक गहन फिलोसॉफिकल एक मीनिंग भी है। आप बहुत सारी उर्दू शायरियों में तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा। तो आज हम जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं वो विज्ञान भी, तो साइंस इटसेल्फ इज अ क्षमा। क्षमा मैं जिस तरह से कहा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम नहीं जानते हैं, जब वहां पे विज्ञान पहुंचता है, when science reaches that point, when science reaches to the darkest corner, तो हमें नेचर का, प्रकृति का जो हमारी जो नेचर है उसके राज हमारे सामने खुलने रखते हैं। तो वही काम तो क्षमा का है, वही काम तो विज्ञान का है, वही काम तो साइंस का है। तो साइंस एक ऐसी क्षमा है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपके साथ विज्ञान की
स्टोरी टेलिंग के बारे में किस तरह से हम लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि अलग अलग विषयों पे, अलग अलग बातों पे, अलग अलग पॉइंट्स पे आपके साथ बहुत सारा संवाद किया गया है, डायलॉग हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, और इस सेशन के अंत में हम आपसे बात भी करेंगे। आपके कुछ सवाल है तो वो भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज, एज ए स्टूडेंट मैं आपके साथ अगर बैठा हूं तो कोई टीचर के रोल में या स्पीकर के रोल में नहीं बैठ रहा हूं। मैं आपके साथ आपका दोस्त बन के आया हूं, आपसे बात करूंगा, कुछ शेयर करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमें लगता है कि क्या हम लिख सकते हैं। लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को, कि लिखना तो ऐसा काम है जो बहुत बड़े, ऐसा बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी वाला है वही लिख सकता है, और ऐसा 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 आदमी, ऐसे मतलब जैसे कैसे ऐसे प्रबुद्ध लोग, साइंटिस्ट लोग जो ऐसे रॉकेट उड़ाते हो या लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, हम सबको ये सब लगता है कि लिखने वाले लोग ऐसे ऐसे होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं कि भाई हम तो नहीं लिख सकते हैं, हम तो ना लैब में जाते हैं, ना हम रॉकेट उड़ाते हैं, ना कि किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, वी आर नॉट साइंटिस्ट। तो हाउ कैन वी राइट अबाउट साइंस? तो सबसे पहले आपको ये थॉट आपको अपने दिमाग से निकालना है। ये थॉट आपको निकालना है कि आप जो है कि चूंकि विज्ञानी नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। यू थिंक दैट यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट, सो इट्स अ फॉल्स थिंग। सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में ये डालनी है कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, हाँ मैं लिख सकती हूँ, आई कैन टेल अ स्टोरी। अब लगता है कि ये लिखना क्या होता है, मैं तो कुछ जानती नहीं हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं कैसे लिख सकता हूं, है ना। हम ये सब सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आपने अपने स्कूल में कभी लड़ाई देखी है ना? दो आपकी सहेलियां, आपके दोस्त सब लड़ते हैं, देखा होगा, है ना। दो आपकी सहेलियों के बीच में झगड़ा हो गया, देखा होगा। आपने अपनी दूसरी सहेली को बताया है कि भाई ये इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, बात करी होगी? यस सर। है ना? यस सर। तो उसमें क्या आपको कभी ये आपको उसको रट्टा मारना पड़ा कि मैं ये कहूंगी? आप नहीं कहते ना, आपके अंदर से अपने आप निकलती है ना बातें, आप सोच के जाते हैं। हाँ, आप सोच के तो नहीं जाते है ना। अरे देखो देखो इसने ये किया था, ये इसने इसका ये डब्बा चुरा लिया था, या ना मैंने उसको बोला था 10 बजे और ये 11 बजे आई, इसको फोन करने के लिए बोला, इसे फोन नहीं किया, और ये मेरा टिफिन खा जाती है, लेकिन ये खुद का टिफिन लाती नहीं है, ये तो ये है वो है। ये आपके अंदर से अपने आप निकलता है ना, निकलता है ना। क्यों निकलता है? क्योंकि आप, है ना, तो वो अपने आप निकलता है। इसलिए निकलता है क्योंकि आप उस घटना के बारे में, आप उस झगड़े के बारे में एक से एक चीज जानते हैं। मैं अगर आपको कल बोल दूं कि आपको लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड, यू हैव टू राइट ऑन ऐसे ऑन योर माय बेस्ट फ्रेंड, तो आपको सोचना पड़ता है क्या? नहीं सोचना पड़ता है ना। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप लिख देते हैं। आप उसकी कोई गाइड होती है क्या? उसके लिए आप ट्यूटोरियल लेते हैं? डू यू गो ऑन वेबसाइट, आप बैजूस पे जाके या किसी ऐप पे जाके जानते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या लिखना है? या माय फैमिली, इफ यू आर टोल्ड कि राइट एन एसे ऑन माय फैमिली, मेरा परिवार या मेरा घर या मेरी स्कूल, उसके बारे में जब आपको लिखने को बोलते हैं तो क्या आपको किसी वेबसाइट का, किसी ऐप का, किसी गाइड का या टीचर का सहारा लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता ना। आप तो क्यों नहीं लेना पड़ता है? बिकॉज आप उसके बारे में जानते हैं, है ना। आप जानते हैं कि आपका फ्रेंड क्या है, कैसे है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके शौक क्या है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है, जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, आप इफ यू नो अबाउट समथिंग, इफ यू नो अबाउट some topic, some person, so you can speak very naturally, you can speak very naturally, you can write very naturally. उसके लिए आपको लेखक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के बारे में 2 लाइन तो वैसे ही लिख सकते हैं, और आप ज्यादा लिखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोस्त आपके साथ रहता है तो आपको उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है ना। हाँ कि भाई अगर अच्छी की दोस्त है मंतशा, तो पता रहता है कि भाई मंतशा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आबिदा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हम जानने की कोशिश करते हैं ना। एक दिन आबिदा आई, आतिशी से मिलने के लिए आई,
और वे पूछते पहले दिन पूछा कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, दूसरे दिन तुमने जानने की कोशिश की उसको कौन सा कलर पसंद है, फिर उसको कहाँ घूमना फिरना पसंद है, फिर उसका बर्थडे जब आता है तो ऐसा गिफ्ट आतिशी लाती है आबिदा के लिए, है ना, ऐसा लाती है कि जो बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हो, क्योंकि तुम उसके बारे में बहुत कुछ चीजें जानती हो। फिर आबिदा खुश हो जाएगी, फिर आशी का जब बर्थडे आएगा तो उसको भी देगी गिफ्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के बारे में हम जानते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं, उसके बारे में हम खुद ब खुद हमारे अंदर से सवाल निकलते हैं कि भाई हाँ ये अभी देखो ये पसंद है, उसको वो पसंद है, इसको इस तरह से ये चलना पसंद है, ये इतने बजे उठती है, इतने बजे सोती है, अगर ये देर से उठने वाली लड़की है तो मैं उसको सुबह 7 बजे फोन करके नहीं जगाऊंगी। आप ख्याल करते हो उस व्यक्ति का जो आपके करीब है। वैसे ही दोस्तों हमारे आसपास भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। आप घर से निकलते हैं, घर के बाहर रोड है, पेड़ है, पौधे हैं, ठीक है, आपके आपके यहाँ पे भाई चिड़िया आती होगी, आपके यहाँ पे कौवा आता होगा, काबर आती होगी, मैना आती होगी, है ना, तोता आता होगा, आप बहुत सारे पंछी देखते होंगे, आपके यहाँ पे आसपास गाय होगी, भेड़ होगी, बकरियां होगी, और बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, मतलब आपके आसपास की लोग है। अब जब तक तुम अपने आसपास की दुनिया से दोस्ती नहीं करोगे तब तक उस दुनिया को जान नहीं पाओगे, ठीक है। और दुनिया को जैसे जानना है तो उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, दोस्ती करोगे तो आपको जानने की आपको जिज्ञासा होगी। जैसे ही आप स्कूल में आते हैं, अब स्कूल में आप जो किताबें है ना, जो किताबें आप पढ़ते हैं, बहुत सारे विषय है, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच यू कैन एक्सप्लोर, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच यू कैन स्पीक अपॉन, there are lots of subjects on which you can research upon। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप कर सकते हैं अगर आप उनसे दोस्ती कर ले, ठीक है। जैसे आप अपनी दोस्तों के बारे में जानते हैं, वैसे ही आप अपने आसपास की दुनिया में के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उनसे सबसे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरा दोस्त कौन हो सकता है? मैं आसमान की ओर देखता हूं तो आसमान भी मेरा दोस्त है, मैं तारों की ओर देखता हूं तो तारे भी मेरे दोस्त हैं, मैं चींटी की ओर देखता हूं तो चींटी भी मेरी दोस्त है। तो सबसे पहले आप दोस्ती करिए उस प्रकृति के तत्वों से, चांद से दोस्ती करिए, सूरज से दोस्ती करिए, हर एक छोटे जीव से दोस्ती करिए कि जो आपके आसपास है। देखिए फिर मजा, देखिए फिर आपको उसके बारे में जानने में मजा आएगा। फिर जब आपके टीचर बोलेंगे कि इसके बारे में लिखना है, ठीक है, चांद के बारे में लिखना है, तो आप हर साल चांद के बारे में नई नई जानकारियां लाएंगे। और जब तक आप बड़े हो जाएंगे आपके पास चांद के बारे में इतनी सारी जानकारी होगी कि इसरो या नासा जैसे लोग आपको बुलाएंगे कि अरे भाई ये लड़की के पास तो चांद के बारे में बहुत जानकारियां है, ये बहुत कुछ जानती है, अरे इसको बुलाते हैं, है ना, क्योंकि उसने चांद से दोस्ती कर रखी है। अभी मेगा मैडम अभी साइंटिस्ट है तो उन्होंने बहुत सारी चीजों से उन्होंने दोस्ती करके रखी है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी संस्थाओं ने, इसरो ने उनको बुला लिया कि आप मेगा मैडम आप आ जाइए, हमारा काम कर दीजिए, ठीक है। अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने रॉकेट से दोस्ती कर ली थी, तो यहाँ की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने और इसरो ने उनको भी बुला लिया कि आप कलाम साहब आप आ जाइए, हमें रॉकेट के बारे में बताइए, क्योंकि आप बहुत सालों से रॉकेट को जानते हैं। तो ये पहला एक कदम है कि जानना और देखना और दोस्ती करना, नंबर 1 चीज। दूसरा चीज कि हम जो है कि जानकारी कैसे ले, तो भाई किसी और लड़की को, भाई फैजा को अगर कुछ आपको कैसे पता चला कि आपकी जो दोस्त है उसको भाई बैंगन की सब्जी नहीं पसंद है? आपने कभी ना कभी पूछा होगा ना कि भाई तुझे क्या नहीं भाता है, या कभी आप बाहर गए होंगे कहीं खाने पीने के लिए, आपके घर पे आए होंगे, तब पता चला कि ये बैंगन नहीं खाती है ज्यादा। तो या तो आपने ऑब्जर्व किया उसको, यू ऑब्जर्व दैट पर्सन, ऑब्जर्व दैट गर्ल कि यार दिस गर्ल इज नॉट ईटिंग ब्रिंजल, बैंगन नहीं खाती है, या उसको पूछ लिया होगा, ठीक है, कि भाई ये तो खाती नहीं है। मतलब सवाल पूछने से आपको जानकारी मिलती है। ये आपको फिर आपने फिर पूछा कि भाई क्यों नहीं खाती हो, तो उसका कुछ कारण बताया होगा, उसने मुझे टेस्ट नहीं पसंद है, या मेरी मम्मी ठीक से बनाती नहीं है, या मुझे बाहर, घर के बाहर बैंगन खाते हैं तो अच्छा लगता है, घर में बनाते हैं तो नहीं बनाते हैं, मेरे पापा अच्छा बैंगन बना लेते हैं, या मुझे तो और सब्जी पसंद है, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। बट जब आप पूछते हैं तो आप जानते हैं। वैसे ही आपके आसपास जो दुनिया है, ठीक है, आप उसके बारे में अगर पूछोगे तो क्वेश्चन एवरीथिंग,
मेरा सबसे पहला है कि आपको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए. You should have curiosity. You should have curiosity inside you. Then there should be questioning. पूछिए. आपको लगता है कि आप में से हर लोग स्कूल में जब लेक्चर होता है किसी भी विषय में, इन एनी सब्जेक्ट देयर इज अ लेक्चर या पीरियड होता है, तो अपने टीचर से सवाल पूछते हो क्या आप लोग? पूछते हो ना? यस। है ना? या फिर आपको डर लगता है कि ऐसा मैं पूछूंगी तो कैसा लगेगा? आपको कभी कभी लगता है कि यार ये क्या पूछती है, ये मतलब और लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये आयशा को इतना भी नहीं पता है क्या? हाँ, ये शबनम को इतना भी नहीं पता है क्या? इस तरह से लगता होगा कि ये बाकी के दोस्त क्या सोचेंगे. तो सबसे पहले ये डर निकाल दीजिए कोई और क्या सोचेगा आपके बारे में, कि मैं ये सवाल पूछते हुए कैसे लगूंगी. देखिए, जितने भी सवाल आप एक दूसरे को पूछेंगे, जितने भी सवाल आपके मन में होंगे और जितने भी सवाल आप अपने टीचर से, अपने गुरु से, देखिए सीखा कोई भी सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल के टीचर ही आपको सिखाए. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अनुभवों से, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस दे लर्न. मैं आपको अपना बहुत बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि भाई कैसे कैसे आदमियों के पास कैसा नॉलेज होता है और अगर पूछने से कितना कुछ हम जानने को मिलता है. ये ना अपने 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 नल सरोवर का तो नाम सुना होगा. नल सरोवर जैसा है ना, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आती है, पंछी आते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए. वी गो फॉर बर्ड वॉचिंग, पंछी देखने के लिए जाते हैं. वैसे ही ऐसे मुझे पंछियों को देखने का बड़ा शौक है. और नेचर में हर तरह के, बहुत तरह तरह के पंछी रहते हैं. तो मैं गया राजस्थान में, एक ऐसी जगह है जो जैसे नल सरोवर जैसी ही जगह है, उसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते हैं. ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी. आप कभी राजस्थान जाइएगा तो मम्मी पापा से कहिएगा कि मुझे ये बर्ड सेंचुरी में जाना है, जो जैसे नल सरोवर है वैसे वहां से बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे बर्ड्स है. दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कंट्रीज. देखिए, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कोई कजाकिस्तान से आ रहा है, कोई इराक ईरान से उड़कर यहाँ पे आ रहा है, कोई रशिया से उड़कर यहाँ पे आ रहा है. मतलब छोटी, इतनी छोटी सी चिड़िया कैसे इतना उड़ के, हम तो भी इतना थोड़ा खाते हैं, दौड़ते तो सब जाते हैं. ये बेचारी इतनी छोटी सी चिड़िया पता नहीं क्या खाती होगी, उड़ते उड़ते इतनी ऊपर हवा में, जहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होती है, वो सीधे इतना क्रॉस करके यहाँ पे आती है. तो वहां पर भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं. तो मैं घूमने निकल गया. अब घूमने निकल गया तो मैं जा रहा था अपने, वहां पे एक मैंने गाइड किया था कि जो मुझे बताए, लोकल गाइड था वहां पे, तो जो मुझे बताए कि ये कौन सी चिड़िया है, कहाँ से आती है. और वहां मैं जा रहा था, चल के जा रहा था. सामने से साइकिल पे एक भाई, एक बंदा, वो एक भाई साहब साइकिल चलाते हुए आ रहे थे. अब उनको अगर देखे तो बड़े आम से आदमी लग रहे थे. मतलब शर्ट एकदम 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 वो आम शर्ट थी, इन शर्ट भी नहीं किया था. ठीक है, थोड़ी थोड़ी वो रिंकल्स मतलब चेहरे पे आ गई थी. हाथ पे डंडा था, सर पे टोपी थी. और ये जो आदमी था, अब अगर आपको वैसे को पता ना चले तो आपको लगेगा कि कोई आम आदमी है. अब मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने बताया कि ये जो भाई है, ये विजेंद्र भाई साहब है, उन्होंने 2 किताबें लिखी है. अब मैं तो हक्का बक्का रह गया, ये 2 किताबें इस आदमी ने लिखी कैसे. और फिर मुझे तो जिज्ञासा हुई, तो मैं चला गया उसके पास कि भाई ये कुछ मतलब ऐसा कोई गप्पा, मतलब ऐसा कोई जोक्स तो नहीं कह रहे, गप्पा नहीं मार रहा है ना, गप मारते हैं ना लोग. तो मैं तो उस भाई के पास चला गया, उस भाई को पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या है क्या नहीं है. मैंने बोला कि ये मेरे साथ जो भाई साहब ये कह रहे हैं आपने किताब लिखी है. उसने कहा हाँ मैंने लिखी है. मैंने बोला आपने क्या पढ़ाई बढ़ाई की है क्या. तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने भाई साहब कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं की, मैं तो अनपढ़ आदमी, गवार आदमी हूँ, मैं गाय भैंसे चराता था. मैं परेशान, मैं कि ये गाय भैंस चराने वाला आदमी, अनपढ़ आदमी, उसने कैसे 2 किताबें लिख दी. फिर उसने अपनी बैग में से एक किताब निकाली, दूसरी नहीं थी शायद, दूसरी छप रही थी, एक किताब निकाली. अब उस पे उसका नाम था विजेंद्र सिंह, उसका नाम था. बोला यार गजब है, उसी का नाम था, पीछे फोटो भी उसकी छपी थी. इतनी मोटी किताब इंग्लिश में, और वो भी वहां के जो बर्ड्स के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में लिखी थी. मैंने बोला भाई तू गाय चराता है, भैंस चराता है, स्कूल पढ़ने नहीं गया है, तूने किताब कैसे लिख दी, वो भी अंग्रेजी में. तो मैंने बोला कुछ लोचा लफड़ा लग रहा है. तो मैं फिर उसके साथ घूमने चला गया. चलो भाई मैं तुमसे बात करते करते मैं चलता हूँ. अब रास्ते में वो हर चीज मुझे बता रहा है
वो हर पेड़ में दिखा रहा है मुझे, हर एक चीज, एक पेड़ दिखा रहा है, पंछी दिखा रहा है, हर एक चीज दिखा रहा है। यार ये इसका नॉलेज तो उसके पास है। अब तब जाके मुझे क्यूरोसिटी हुई यार कि ये आदमी जानता है, पढ़ाई नहीं की, ये है क्या, ये इस व्यक्ति के पास ये आदमी क्या जानता है, व्हाट डज दिस पर्सन नो। फिर मैंने उसके साथ बातें करी तो उसने बताया कि मैं बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मतलब स्कूल नहीं जाता था, मैं अपने यंग था, तब यहाँ पे गाय भैंसे चराता था। और एक पक्षीविद है, एक साइंटिस्ट है, सलीम अली नाम है उनका, है ना। सलीम अली बहुत बड़े एक पक्षीविद हो गए, जो पंछियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। तो वो इतने बड़े आदमी थे, वो वहां पे आए थे, उन्होंने इस भाई साहब को देखा और लगा कि मेरे साथ काम करोगे। वो बोला कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, मैं सर आपके के काम आऊंगा। तो बोले कुछ नहीं, मेरे साथ आ जा, रहते रहते सीख जाएगा। अब सलीम अली साहब, मतलब मान लो इतने बड़े बड़े व्यक्ति, इतने बड़े विज्ञानी, उनके साथ जब उन्होंने काम करना चालू किया विजेंद्र सिंह जी ने, तो अब पढ़ना नहीं आता लेकिन वो सुनते थे, जो सुन सुन के उन्होंने याद कर लिया चीजें, सुन सुन के उन्होंने पूरा पूरा, मतलब उनको अब तो पढ़ना नहीं आता था, तो उनके पास और कोई चीज नहीं थी, जो सुनते थे वो याद रखते थे। तो पूरा का पूरा बॉयज का नॉलेज उनको याद रह गया, हर एक चीज याद रह गई, है ना। फिर तो बहुत सारे लोग जब बाहर से भी घूमने आते थे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जब आने लगे और देशों से आने लगे और जगह से आने लगे, तो सबकी बात वो याद रखने लगे, तो उनके मेमोरी में स्टोर हो गया। फिर उनकी किसी मुलाकात एक ऐसे साइंटिस्ट से हुई जो अपने नेदरलैंड से आया हुआ था, उसने भी जाना कि ये बंदा जानता तो बहुत है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो उसने क्या किया, उसने विजेंद्र के साथ मिलकर किताब लिखी कि आप बोलिए मैं लिखता हूं, आप मुझे बताइए, उसको मैं ठीक करके मैं लिखता हूं। तो इस तरह से विजेंद्र सिंह की किताब छपी। उत्सव भाई, जी the example what you gave right now, जी our tagline fits in with that. Okay, so Sinotech's tagline is exposure leads to exploration and exploration to innovation. जी Whenever you are exposed to something, you tend to explore it more about it if you like it. Okay, so बेटा राइटिंग के लिए भी आपका इंटरेस्ट जब आप पहले जगाओगे, या इंटरेस्ट अपने आप जब नेचुरली जगेगा, तो and you become curious about it, that's what is Utsav bhai is talking about, है ना। So the whole idea is that हमारी tagline वही है, that exposure leads to exploration and exploration only leads to innovation. तो इस तरह से एक अनपढ़ आदमी ने भी किताब लिख दी। आप तो बहुत लकी हो, आप तो बड़े, है ना आयशा, यू आर वेरी लकी कि आप लोगों को तो आप लोगों को तो स्कूल में टीचर है, आप जब सवाल करेंगे। तो विजेंद्र सिंह ने भी खुद से सवाल किया, विजेंद्र सिंह ने खुद से जाना, सुन सुन के लिख दिया किताबें। तो मतलब लिखना ऐसी चीज है कि आप लिखना नहीं जानते फिर भी लिख सकते हैं, क्योंकि विजेंद्र सिंह के दिमाग में किताब यहाँ थी, ठीक है, लिखा यहां से जाता है ना, सवाल यहां उठते हैं। तो आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वॉट एवर यू फील, जिस चीज से आप एक्सपोज होते हैं, जिस चीज का आपको अनुभव है ना, जिस चीज का, जिस घटना का आपको एहसास है, एक्सपीरियंस है, यही चीजें, यही बातें आगे चल के आपको ज्ञान में परिवर्तित कर सकती है। तो ये पहला स्टेप हुआ आपका कि क्यूरोसिटी होना, जानने की जिज्ञासा होना। दूसरा चीज है उसके लिए सवाल पैदा होना, और सवाल पैदा होने के बाद उस चीज के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। अब दूसरी चीज कि क्या हमें जो कहा जा रहा है हम सब मान ले, ठीक है, क्या सब कुछ जो हम देखते हैं वही सत्य है, दैट इज द ओनली ट्रूथ अराउंड अस? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो कहा जा रहा है सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है। उन्हीं बातों का स्वीकार करो, उन्हीं चीजों का स्वीकार करो जो तुम्हारे तर्क के अंदर भीतर आती है, जो तुम्हें लॉजिकली सही लगती है, जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये सही है। अगर नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ये, मुझे लगता है कि भाई ये जो सूरज है वो पूरब में उग नहीं सकता है, ये तो सब, ये बात सब पहले आपको पता है कि बहुत सालों पहले ये कहा जाता था कि भाई पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और ये सारे चांद तारे सूरज उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। अब सबने अगर पहले से यही मान लिया होता कि भाई यही सच है, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि भाई ऐसा नहीं है, सूरज के आसपास
धरती घूमती है, धरती के आसपास चांद घूमते हैं, धरती और चांद साथ साथ सूरज के आसपास घूमते हैं, और पूरा सूरज अपना ब्रह्मांड के जो तो सूर्य मंडल है वो पूरा का पूरा ये गैलेक्सी के वो सेंटर के आसपास घूमते हैं। तो किसी ने इसको चैलेंज किया ना, जब बताया गया कि सूरज पूरब में उगता है, अब हम सब ने मान लिया होता तो हमें कभी नहीं पता चलता कि भाई सूरज के आसपास धरती घूमती है। समवन आस्क, समवन चैलेंज, है ना। तो उसी से एक नई खोज होती है। जब तक आपको नई नई चीजें पता नहीं चलती है, जब तक आप अपने आप को टटोलते नहीं हो, until and unless you ask questions to yourself, आपको पता नहीं चलेगा, आप नई चीजें नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहली बात, जानने के बाद उस पर तुरंत विश्वास ना करें, उस पर भी सवाल करें, है ना। उसमें आपका क्या जाता है, कुछ घाटा है क्या? सवाल करने से आपको कोई नुकसान है? बताइए। कोई पैसे लेते हैं सवाल करने का? तो होता नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सवाल करिएंगे, तो मैंने जिस तरह से बताया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट नहीं होते हैं तो वो कहानियों के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। मैं एक आपको, आपने ये सोलर एक्लिप्स देखा होगा, जो सूर्य ग्रहण देखा होगा, क्या होता है उसमें? अंधेरा छा जाता है ना। अब कोई आपको ये बताए ना कि भाई ये तो क्या है कि धरती जो है, मतलब चांद बीच में आ जाता है, मतलब जब सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है, आयशा का भाई उसको परेशान कर रहा है। जब चांद आ जाता है धरती और सूरज के बीच में, ये आपको कोई बताए नहीं तो आपको कितना डर लगेगा, ये अंधेरा कैसे अचानक से हो गया, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग थे, बहुत साल, हजारों साल पहले वाइकिंग करके लोग थे। अब वाइकिंग लोग को पता नहीं था कि ये सोलर एक्लिप्स क्यों होता है, तो क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों सूरज अचानक अंधेरा छा जाता है। आपको पता होगा ये सूर्य ग्रहण जो है वो कुछ ही मिनट के लिए चलता है, 10, 11, 12 मिनट। तो उन्होंने अपने मन से कहानी गढ़ ली। अब मतलब उनको पता नहीं था, साइंस पता नहीं थी, और ना किसी से पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने स्टोरी कर ली। स्टोरी ऐसी थी कि वो ऐसा सोचते थे, कोई बड़ा एक वुल्फ है, एक वुल्फ है, जो वुल्फ ये सन को खा जाता है ना। फिर वो इकट्ठा होकर आवाज करते थे, 10-15 मिनट को आवाज करते थे। वैसे भी वो सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, वैसे ही कुदरती तौर पे नेचुरली वो समाप्त हो जाता है। तो उनको लगता था कि ये कोई वरु है, कोई वुल्फ है, भेड़िया है, भेड़िया खा जाता है और हम आवाज करते हैं और ये भाग जाता है। तो बहुत सालों तक ये कहानी चली और उनको जानने की जरूरत नहीं महसूस हुई कि ये जो कहानी है वो सत्य नहीं है। लेकिन जो वो देख रहे थे उसके लिए कहानी एक घड़ के उन्होंने अपने आप को मनाया था, समझाया था कि भाई हाँ, इस तरह से आप जो है उसको समझ ले। तो जब तक किसी ने सवाल नहीं किया कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है कि भेड़िया आसमान में हो, किसी को तो सवाल हुआ होगा, किसी के मन में ये सवाल उठा कि भेड़िया आसमान में तो नहीं हो सकता है, वो हवा के बिना कैसे जिंदा रहेगा, किसी ने ऐसा सवाल सोचा होगा। फिर उसके बाद पता चला, किसी ने साइंस उसकी निकाली, तब पता चला कि हाँ ये तो भाई बीच में चांद आता है और ये चला जाता है, इसलिए भाई सूर्य ग्रहण होता है और सोलर एक्लिप्स होता है। उसके बाद कहानी की जरूरत नहीं हुई, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जब हम उसके बारे में, इस दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं, जब हमारे आसपास रहती है, लेकिन जब साइंस आ जाती है, विज्ञान आ जाता है, तब ये कहानी खत्म हो जाती है, वहां पे लॉजिक आ जाता है, उसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात कि आपको जो कहा जा रहा है, अगर आप तुरंत ही किताबों में लिखी हर बात सच नहीं होती है। कभी कभी होता है वो आधा सच होता है, क्योंकि इंसानी जो कौम है वो कौम वहीं तक पहुंची है, जो दिमागी सहूलियत है, जो उसी सीमा तक समझती है, उसके बियॉन्ड भी, उसके आगे भी कोई सच हो सकता है ना। तो जिस तरह से आपने दोस्ती कर ली, आपने जिज्ञासा आई, आपने पूछा, आपने जाना परखा, उसके बाद फिर से पूछना है आपको कि क्या ये कितना सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप सही चीज को जान पाएंगे, और जिस चीज को आपने जान लिया है उस चीज को आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चला ना कि आप सब लिख सकते हैं, है ना। आप चाहे जिस भी उम्र के हो, आपने जो भी पढ़ाई की हो, आप लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं।
है ना, किस तरह से चीजें। दूसरी चीज क्या होती है, हमें पता कैसे चलता है कि हम किस तरह से लिखे, क्या लिखे, है ना। अभी आप बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन आप कभी छोटे भाई को समझाते हैं। आपको आपने मतलब एक स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अब आपको छोटे भाई को समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप उसको भारी भारी ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 O2 H2 ऐसा थोड़ी ना समझाएंगे। आप तो उसकी भाषा में समझाएंगे ना। आपके छोटे भाई को समझाना है, आपकी छोटी बहन को समझाना है, आप क्या करेंगे? आप तो आपको आप आसान भाषा में समझाएंगे ना। आप अपने छोटे भाई को ये बोलते हो H2O पी लो, आप बोलते हो कोई H2O पी लो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके पानी बना लो? हम ऐसा नहीं करते ना। हम क्या बोलते, पानी पी लो, है ना, पानी पी लो। इस तरह से आसान भाषा में बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजन पेड़ है तो पेड़ हम बोलते हैं कि पेड़ ने O2 देती है, CO2 लेती है। अरे जिसको O2 CO2 नहीं मालूम है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मालूम है, वो तो पागल हो जाएगी, क्या बात कर रही। अब हम ये है कि भाई हमें पेड़ है जो सांस देती है, और हम जो सांस छोड़ते हैं वो पेड़ खुद ले लेता है। कितना अच्छा दोस्त है हमारा पेड़, कि भाई हम हमारे दुख दर्द, हमारा हमारा जो हम जो सांस छोड़ते हैं उसको ले लेता है, हमें जिंदगी देता है। तो कितना कितना अच्छा है ये पेड़, है ना। तो इस तरह से हम बताएंगे तो पेड़ के बारे में कितनी अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो पहले उस चीज को जब हम समझ जाते हैं ना, तो बहुत आसान शब्दों में उसको बयां कर सकते हैं, उसको आसान शब्दों में बता सकते हैं। तो ना कभी कभी ये भारी भारी शब्दों में, भारी भारी चीजों में मत बताया करिए। मतलब जो आप चीज समझ चुके हैं ना, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देन यू कैन एक्सप्लेन। अगर आप किसी चीज को मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी लगता है, आप पढ़ते हैं ना, लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे आया कि नहीं आया है। उजमा, कैसे पता चलेगा कि यार ये सब टॉपिक मुझे आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, आपकी एग्जाम जब होती है तब आप क्या करते हैं कि आपका दोस्त कभी आपके पास आता है, यार देखो ये मैथ्स का ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे नहीं आता है, नफा नुकसान नहीं आता है, या तो मुझे बता देना है। आयशा गई उमेमा के पास, उमेमा ने बताया कि यार प्रॉफिट लॉस हाँ मुझे आता है। अब तुम कब आयशा को बता पाओगी, है उमेमा? जब तुम्हें खुद पता होगा। जब तुम्हें खुद पता होगा तुम आराम से बता पाओगी। तो मतलब जो चीजें हमें बहुत अंदर से पता होती है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप जब कोई चीज पढ़ते हैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, किसी और को समझा पाए, ठीक है। शबनम का फोन आता है उमेमा को रात को 1 बजे, अरे यार ये थियोरी समझ में नहीं आती है, और शबनम रात को ठीक है, उमेमा और रात को 1 बजे फोन पे भी समझा दे उसको, मतलब उमेमा को ठीक से आता है। और जब शबनम समझ भी जाए, तो ये टेस्ट करने का तरीका है कि आपको आया कि नहीं आया। जब आप समझा सकते हैं मतलब आपको आया है। व्हेन यू कैन एक्सप्लेन यू नो, है ना। तो ये करिए कि आप जब कोई चीज सीखते हैं, आपके छोटे भाइयों को सिखाइए, छोटी बहन को सिखाइए, है ना। आपके आसपास के छोटे बच्चों का क्लास ले लीजिए, समझा दीजिए उसको, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, है ना। बड़ों को भी समझा सकते हैं, मम्मी को समझाइए पकड़ के, देखो मैं आज तुमको ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ा है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या होता है ना। मम्मी समझ जाए तो ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, इंटरेस्टिंग चीज है। आप समझाइए, खुद समझिए, समझाइए, तो आपको मजा आए। उसके बाद ये होगा कि आप हर चीज को समझने लगेंगे। जब जब बड़े होते जाएंगे हर चीज को समझने लगेंगे, फिर समझाने लगेंगे, है ना। फिर जब समझाने लगेंगे फिर लिखना भी आपको आसान हो जाएगा। तो आपको कठिन कठिन नहीं बोलना है, आपको आसान आसान शब्द बोलने हैं, आसान भाषा में लिखना है, आसान भाषा में समझाना है। दूसरा चीज होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपके आसपास की दुनिया को देखना, है ना। अभी आप सब लोग के पास मोबाइल तो आ गया होगा, कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा, या मम्मी पापा थोड़े टाइम के लिए देते होंगे, है ना। आप सब फिर चिपके रहते हैं। आप अभी बस में या बाहर जाते हैं तो आप खिड़की के बाहर कितने लोग देखते हैं? डू यू ऑब्जर्व, डू यू सी द वर्ल्ड आउटसाइड योर विंडो? नहीं 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 सर, ये क्या विंडो के बाहर क्या देखना, अभी तो ट्रैफिक होता है, अभी तो मैं गेम देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, अभी विंडो के बाहर क्या देखना। कभी आपके घर में बिल्ली आए तो देखना, बिल्ली कैसे घर में घुसती है। बिल्ली कैसे, मतलब आप सोचो, आपकी घर की जो जाली होती है वो कितनी छोटी होती है। बिल्ली इतनी
फैली हुई होती है, इतनी बड़ी, आपको लगता है कि छोटी जाली से बिल्ली घुस जाएंगी। अब बिल्ली नेक्स्ट टाइम घुसे ना, उसको घुसने दो और देखो कैसे घुसती है, कौन सा पाँव पहले रखती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, कैसे शरीर सिकुड़ती है, फिर ऊपर आती है, दूध कैसे पीती है ना। आपको हल्की सी आवाज भी नहीं होती है, आपको पता भी नहीं चलता जब तक आपकी वो मम्मी चिल्ला ना दे या वो उसका आपका बर्तन जो है वो थोड़ा उसके आवाज ना आए, है ना। तो आप देखिए, तो आपको बिल्ली के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। ऑब्जर्वेशन, तो उससे बहुत सारी चीजें में पता चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ऑब्जर्वेशन से क्या होता है। हम आसपास की दुनिया को देखने के लिए जब है ना, जैसे आज ना कोरोना फैला, वैसे ही 100 साल पहले एक नया वायरस था, इन्फ्लुएंजा, फ्लू का वायरस था। जैसे कोरोना में इतनी खराब स्थिति हुई, वैसे ही फ्लू के वायरस में भी इतनी खराब स्थिति आज से 100 साल पहले 1918 1919 के आसपास हुई थी। तो एक वैज्ञानिक था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था उसका। उसने भी, उसको लगा जैसे आज कोरोना की सब दवाई ढूंढ रहे हैं, वैसे भी वो भी कुछ अपनी लैब में लंदन के अंदर कुछ प्रयोग कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि यार कुछ तरह से इसकी दवाई ढूंढ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन वो ना बड़ा आलसी टाइप का आदमी था, है ना। तो अब अपने उसकी डिश थी, उसके डिश के अंदर उसने कुछ बैक्टीरिया रखे हुए थे। बैक्टीरिया को भी, जैसे बिल्ली बिल्ली कुत्तों को पालते पोसते हैं ना, वैसे ही ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी हम लोग अपनी लैब के अंदर उगा सकते हैं, है ना। उसको उसको ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। वो आप जब बड़े होंगे, बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे, बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या किस तरह से होता है। लेकिन जैसे हम लोग ये अपने पौधे उगाते हैं अपने उसमें उसके अंदर, गमले के अंदर, है ना। तो गमले के अंदर जैसे पौधे उगाते हैं, वैसे एक छोटी सी डिश आती है, उसके अंदर हम बैक्टीरिया को भी उगा सकते हैं। तो उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को उगा दिया, उगाने के लिए रख दिया, और वो फिर वो भूल गया, उसके बाद वो चला गया। उसने वो साफ सफाई शायद नहीं रखता था, और वो चला गया घूमने के लिए, कहीं उसके आसपास कहीं घूमने घूमने गया होगा। 2 हफ्ते का बाद बाहर आया, वापस आया। अब वहां पे उसने देखा कि ये कोई फंगस है, कोई फंगस है, जो फूग जिसको बोलते हैं गुजराती में, है ना। तो फंगस है, फफूंद है, वो इस बैक्टीरिया को खा रही है या उसको रोक रही है, मतलब उसको बढ़ने से रोक रही है। अब तब उसको पता चला कि भाई संसार में कुछ ऐसी ऐसी भी चीज है जो बैक्टीरिया को भी खा सकती है। आपको कोई चीज ऐसी मिल जाए अभी के वायरस को खा सकती है ना। ये कोरोना वायरस है, अभी आपको कोई ऐसा ही चीज मिल जाए कि भाई वायरस को खाने वाला ये चीज है, तो ये वायरस की दवा हो गई ना। उसका जो तत्व है वो निकाल के आप उसकी दवाई बना दोगे, तो आप एंटीवायरल, मतलब वायरस को मारने वाली दवाई बन सकती है। अभी वायरस को कौन खाता है वो पता नहीं है हमें, है ना। उस टाइम में बैक्टीरिया को कौन खाता है वो पता नहीं था, लेकिन पता चला कि ये फफूंद ये बैक्टीरिया को खाती है। पेनिसिलिन नाम था उसका। तो वो पेनिसिलिन का वो रिसर्च करके उसने उसमें से उसकी जो जादुई दवा थी, मतलब वो जो जिस तरह से जिस तत्व के कारण वो रुक रहा था, वो दवाई निकाली। तो इससे पहली एंटीबायोटिक बनी, वो एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, है ना। तो जैसे आज हम एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, वो क्या है, कोरोना में बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, है ना, एजिथ्रोमाइसिन दवाई। तो वो एंटीबायोटिक है। तो ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो उसने देखा नहीं होता, उसने लगा होगा कि क्या उसने वो जो बैक्टीरिया उगाने वाली जो डिश है वो फेंक दी होती, तो पता ही नहीं चलता कि यार ये देखो कोई पेनिसिलिन, मतलब ये कोई फंगस है, फफूंद है जिसको खा रही है। उसने देखा, उसने फेंका नहीं। तो ये देखने से पता चला, और हम सबको एंटीबायोटिक दवाइयां मिली। बहुत साल पहले ये था कि बैक्टीरिया को कौन खाता था, कौन सा जीव है जो उसको खाता था, वो पता नहीं था। ये पता चल गया, हमें दवाई मिल गई, तो बहुत सारे रोगों से हम लोग मुक्त हो गए, है ना। एंटीबायोटिक्स हमें मिल गई जो हम आमतौर पे आज हम खाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात हुई। ऐसे ही एक बात बताता हूं, माइक्रोवेव आपने सबने देखा है क्या? माइक्रोवेव देखा होगा ना, किसी के घर पे होगा या कहीं शॉप में देखा होगा। चीजें गर्म करते हैं, खाना गर्म करते हैं उसके अंदर, Yes. है ना। हाँ हाँ, तो क्या हुआ एक बात, पर्सी स्पेंसर करके एक आदमी था। वो किसी लैब में काम करता था, जो रडार बनाने वाली कोई लैब में काम करता था। और वहां पे माइक्रोवेव मतलब तरंग जो होती है, माइक्रोवेव मतलब वो तो मशीन का माइक्रोवेव ओवन होती है, माइक्रोवेव तो उसके अंदर वेव्स होती है, वेव्स खाने को गर्म करती है। तो ये तो किस तब बहुत मतलब आज से 50-60 साल पहले ये नहीं पता था कि इससे खाना गर्म होता है।
तो और ये और चीजों में इसका इस्तेमाल होता था। तो ये पर्सी पेंसर तो गया, उसके जेब में हमेशा एक चॉकलेट रहती थी, है ना। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसी लैब के अंदर, और वो माइक्रोवेव वाली ट्यूब थी जहां पे माइक्रोवेव वो तरंगे निकलती थी। तो जब वो काम करता था तो उसने देखा कि यार जो चॉकलेट में लेके जाता हूं ना, ये पिघल जा रही है। उसके बाद वो कुछ अंडे वंडे ले गया, वो फूट जा रहे हैं। उसको लगा कि यार ये जो निकल रहा है इस मशीन के अंदर से, उसका कुछ कर सकते हैं। उसने उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये कोई एक्सीडेंट है, उसने सोचा कि ये कोई जानकारी है जिसका मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद उसको पता लगा कि भाई ये माइक्रोवेव होती है, जो तरंगे होती है, उस तरंगों से खाने को गर्म किया जा सकता है। वी कैन हीट द फूड। और इस तरह से उसने पहला माइक्रोवेव बनाया। वो पहला माइक्रोवेव था, वेव था, वो 5 फुट बड़ा था, 5 फुट 6 इंच, मतलब आपके माता पिता की जो हाइट होगी उतना बड़ा माइक्रोवेव था, बात छोटा हुआ। तो देखिए उसने ऑब्जर्व किया और ढूंढ निकाला कि भाई ये चीज है, इसका तो मैं ये कर सकता हूँ, उसका तो मैं वो कर सकता हूँ, है ना। तो ये जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब आपको ये सब चीजें जानने को, देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज मैंने फिर से बता रहा हूँ, क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा। उसके बाद आप सवाल करते हो, सवाल के बाद जानते हो, जानने के बाद फिर से आप सवाल करते हो, फिर स्वीकारते हो, आपको तथ्य मिलते हैं, आपको सबूत मिलते हैं। उसके बाद आप उसको जब समझ जाते हो तब आसान भाषा में कहने की कोशिश करते हो, है ना। और उसके साथ साथ ही आपके आसपास की जो दुनिया है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको बड़ा ही मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी चीज है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज लिख सकते हो, कोई भी चीज बता सकते हो, कोई भी चीज जान सकते हो, और आप अच्छे से लिख सकते हो। तो यही एक क्रिएटिविटी का फंडा है। एक तो आपको इमेजिनेशन करना है, आपको चीजों को सोचनी है ना। ये सब सारी चीजें इमेजिनेशन से आती है, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो बैक्टीरिया की वो डिश को छोड़ के रख गया था, उसने इमेजिन किया कि ये जो फंगस है जो इसको रोक रही है, तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है उसको भी रोक पाएंगी, जो उसकी दवाई हम बनाते हैं, है ना। वो पर्सी स्पेंसर, उसने सोचा कि भाई ये चॉकलेट को गर्म कर रही है तो पिज्जा भी गर्म करेगा। ये उसका इमेजिन किया, और कैसे करेगा वो मेहनत का काम था। तो ये सब चीजें जब करेंगे तो अच्छे से अच्छे तरीके से आप चीजों को लिख पाएंगे, बता पाएंगे, कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत चीजें मैं जो जानता था या जो मैं समझ पाया हूं मैंने आपको बताया, है ना। क्योंकि मैं आपको बोर होने नहीं देना चाहता हूं और थोड़ा ही वक्त बचा है, तो मैं चाहता हूं हम थोड़ा आपसे संवाद करें, कुछ क्वेश्चन करें। तो आपको भी कुछ मन में, दिमाग में कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो मुझे बताइए। No, sir. Wait a second, beta. Let me just, you will definitely have a question if I tell you something. Beta, he's in the news section, okay? So day in and day in and out, beta, he keeps on interviewing a lot of people, okay? And the people coming to Doordarshan are from different areas, right? From science, technology, arts, music. मतलब जो भी दिन होगा ना बेटा, और न्यूज जो लेटेस्ट न्यूज है, तो वो हिसाब से बेटा आप मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ है कि कैसे मतलब आप एक्सटेम्पोर कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप पूछो, नहीं तो मैं भी पूछ सकती हूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि वो कैसे ये सब कर लेते हैं उतने शॉर्ट टाइम में, अचानक से 1 घंटे में डिसाइड करके कि अगर उत्सव भाई कैन यू प्लीज शेयर वन ऑफ द एग्जांपल्स वेयर सडनली यू कम टू नो अबाउट सम न्यूज and you are interviewing a person, then how do you try putting up questions in sequence to write up ki હવે હું શું પૂછીશ એમ. देखिए हम जब पूछते हैं, हमारे पूछने का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहली चीज कि why do we ask? There could be lots of things. See, we do not ask just to get an information. We do ask to get in clarity about things. तो कभी कभी अगर मुझे ये किसी ने बताया कि भाई केनिया के अंदर ये रास्ता है, ये मसाई मारे से यहाँ जाता है, इसको शॉर्टकट में ये कर दो, तो ये जानकारी है कि केनिया का या अफ्रीका में कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट है, उसके बारे में मुझे बताए, तो इट्स एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज आई थिंक कंप्लीटली यूजलेस फॉर मी। बट कोई मुझे ये बताया कि मुझे अहमदाबाद से, मेरे घर से, गांधीनगर से मुझे शाहपुर शमा स्कूल में जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कौन सा होगा। मैं गांधीनगर से मैं क्या आश्रम रोड पकड़ूं, या मैं एशिया हाईवे से आऊं, या रिवर फ्रंट से आऊं। तो अगर ये जानकारी मुझे मिलती है
तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात, तो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी, इट विल बी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मी. So there is a clarity in my mind that I want to reach Shama School, and to reach Shama School I need to ask certain good question, a certain question कि भाई हाँ ये, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रास्ता ढूंढना है, मुझे ये पूछना है, मतलब तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेगा जी से ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, या आपके प्रिंसिपल से ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो जिससे मुझे वो रास्ता शॉर्टकट मिले कि भाई हाँ हाँ ये है, ये कैसे किस तरह से है. तो ये एक चीज है. तो जब हम इसका जब पूछते हैं कि भाई वाई एंड हाउ, जब हम कभी का किसी चीज का वाई एंड हाउ पूछते हैं तो हमें उस चीज के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती है. जब व्हाट, व्हिच, वेयर ऐसा पूछते हैं तो हमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन मिलती है. लेकिन जब व्हेन वी आस्क कि हाँ भाई कैसे आते हैं, हाँ मैं ये पूछूं कि भाई मेगा जी से कि भाई मैं कैसे आऊं शाहपुर, या मैं क्यों आऊं शाहपुर, या क्यों मैं शमा स्कूल में जाऊं, या क्यों शमा स्कूल के बच्चों से बात करूं, तो मुझे ये पता रहेगा कि भाई हाँ मैं मुझे इस बारे में मुझे, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है, एम ये है, तो इस तरह से. लेकिन अगर मुझे थोड़ा सिंपल सा अगर ये दे दे कि भाई हाँ ये वेयर, तो शमा स्कूल शाहपुर में, तो मेरे लिए काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, कि कितने बच्चे हैं, ये क्या है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इतनी सारी काम की नहीं है. ये मेरा माइंड ये डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य, एम, what I want to get out from that, and how are we utilize that information in my life. So I think that's the genesis of all the questions. So why and how, and that, so आप चीजों को जानिए क्लैरिटी पाने के लिए. आप चीजों को उसके लिए मत जानिए कि आपको केवल और केवल फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं. फैक्ट्स इकट्ठा करना वो कंप्यूटर का काम है, वो मशीनों का काम है. हम इंसान हैं, हमें उन इकट्ठा हुए फैक्ट का इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी को और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए. सही है. और कोई बेटा कुछ पूछना चाहेगा? कुछ भी, मतलब अगर तुमको दिमाग में ऐसा आता हो कि सर को मिलके या दूरदर्शन पे वो कितने सारे लोगों को मिलते होंगे और वो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, सो उन्होंने हमें बताया, अभी क्या बताया कि मतलब हमारी ऑडियंस क्या जानना चाहती है, तो उस हिसाब से ही विल फ्रेम द क्वेश्चन. ओके, वो स्पीकर को तो काफी कुछ पता होगा, बट हमारी ऑडियंस को क्या जान के शायद मजा आ सकता है, क्या जान के उनको कुछ फायदा हो सकता है वो इंटरव्यू का. कोई इंटरव्यू क्यों देखेगा बेटा, है ना? सो द होल आइडिया इज दैट 100% कि अगर तुम लोग को कोई क्वेश्चन